میرا نام مرحا ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ آج میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہا تھا، مگر میرا دل اس کی وجہ سے دھڑکتے جا رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر جائے، کیونکہ اب میرا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ میں اسے بہت روکا، مگر اس نے ایک شرط پر رکوں گا کہ تم آج رات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ پہلی چاہت دسمبر 27۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے زہیب کی فلائٹ مزید ایک ہفتہ لیٹ ہو گئی۔ ویسے زہیب خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ اور وقت مرا کے ساتھ بتا لے، شاید اس کی دعائیں قبول ہو گئیں اور بارشوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زہیب باہر سے آیا تو مرا ابھی زور کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ ماہی، زہیب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی فرمائیے، مرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو زہیب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماہی، میری دعائیں قبول ہو گئیں، میں ایک ہفتے بعد جاؤں گا، بارشوں کی وجہ سے فلائٹس نہیں جا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے زہیب مرا کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ اچھا، زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جانے کیوں مرا کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، اور یہ بات زہیب نے بھی محسوس کی تھی، کیونکہ مرا کے لہجے میں وہ جوش اور خوشی زہیب کو محسوس نہیں ہوئی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ ماہی، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے نہ ہونے کی، جانے کی؟ یہ کہتے زہیب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں نہیں زہیب، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، تو مجھے خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ مرا نے زہیب سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اللہ کرے جو آپ کہہ رہی ہو وہ سچ ہو۔ زہیب نے بھی اب دوبارہ مرا کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ ماہی، تم بالکل اچھی بیوی نہیں ہو۔ زہیب نے آنکھیں موندے مرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو مرا حیران سے زہیب کو دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ مرا پریشان ہو گئی۔ یار، اتنا اچھا موسم ہے، میرے لیے ایک گانا ہی گا لیتی۔ زہیب آنکھیں موندے مرا سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ کون سا گانا؟ مرا نے پوچھتے ہوئے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ اے ابر کرم، آج اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں، اے ابر کرم۔ گنگناتے ہوئے زہیب نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مرا مسکرا رہی تھی۔ اچھا، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی گانے والا نہیں گا رہا آپ کے لیے، اور ویسے بھی مجھے گانے نہیں آتے۔ ہاں، بس آپ کی زندگی بھر کے ساتھ کے لیے دعائیں مانگتی ہوں۔ مرا سنجیدہ ہو گئی تھی، اور مرا کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر زہیب فوراً اسے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہ 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 میری جان، رونا مت۔ ابھی زہیب اسے رونے سے منع کر ہی رہا تھا کہ اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ پلیز زہیب، میں نے بہت کچھ کھویا ہے، اب مزید ہمت نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری اپنوں جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، شاید اس کے سبب کی وجہ میں ہی تھی۔ پتہ ہے، میں آپ کو شادی سے انکار بھی اسی وجہ سے کیا تھا کہ کہیں میری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ مرا زہیب کو روتے ہوئے بتانے لگی تو زہیب نے اسے خود کے قریب کیا تھا۔ مرا بھی اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ جانتا ہوں کہ ہر وقت کیوں پریشان رہتی ہو، پتہ ہے مرا، ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کے بعد پھر عروج ہوتا ہے۔ جس طرح خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی، بالکل اسی طرح غم بھی سدا نہیں رہتے۔ ماہی، تمہیں نہیں لگتا کہ اب خوشیاں ہماری منتظر ہیں؟ زہیب نے مرا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا تو مرا نے زہیب سے الگ ہوتے اسے بہت بے یقینی سے دیکھا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جا رہا ہوں نا، تو احتشام کو بھی اپنے ساتھ واپس لے کر آؤں گا، اور پھر میں تمہاری بیٹی کو بھی ڈھونڈ لوں گا، بس تم اللہ سے دعا کیا کرو۔ زہیب نے مرا کے آنسو صاف کرتے اس سے کہا تو اس نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ انشاءاللہ، مرا بس اتنا ہی کہہ سکیں۔ یہ ایک ہفتہ اتنی تیزی سے گزرا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور زہیب کے جانے کا وقت آ گیا۔ زہیب کا ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا ماموں زاد جا رہا تھا، اس لیے زہیب نے مرا اور اپنی امی کو ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ زہیب ٹھیک 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلا تھا، اور مرا کا دل بہت زیادہ خفا تھا۔ سارا دن پھر بھی کچھ نہ کچھ بولتی رہی، مگر اب اسے بالکل بھی چپ سادھ لی تھی۔ دوسری طرف زہیب کی امی بھی بہت اداس ہو گئی تھی، اور زہیب ان دونوں کو اترے ہوئے چہروں کو دیکھ کر خود بھی اداس ہونے لگا تھا۔ آپ دونوں اس طرح کریں گی تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ زہیب نے مرا اور اپنی امی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تو زہیب کی امی رونے لگی۔ اوہو، آپ کو کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ دیکھنا، انشاءاللہ میں احتشام سویرا اور بچے جلدی گھر خیریت سے واپس آ جائیں گے۔ زہیب نے اپنی امی کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ انہوں نے زہیب کو دعا دی تو وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے امی، میں اپنے کمرے سے
सामान लेकर आता हूँ। अहमद आता होगा, ये ना हो कि फिर फ्लाइट मिस हो जाए। अम्मी अपनी से कहता अपने रूम में चला गया था। मरहा भी उसके पीछे पीछे रूम में आ गई थी। जैसे ही मरहा रूम में आई, ज़ेब उसे गले लगा लिया था और कहा, मेरी जान, मेरी अपनी माही को बहुत मिस करूंगा। फिर उससे अलग होते हुए उसके माथे को चूमा था। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी, अब आपके बिना नहीं रह सकती। मरहा की आंखें नम होने लगी। प्लीज मत रोना, फिर आपका ज़ेब कैसे जा सकेगा? ज़ेब ने मरहा के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा तो वह सर झुका गई। अच्छा, नहीं रोऊंगी। मरहा ने नम आंखों के साथ उसे देखा तो वह हंसने लगा। रोते हुए कहती हुई, नहीं रोऊंगी। चलो अब बंदा करो रोना, बंद करो रोना, और अम्मी के सामने बिल्कुल भी नहीं रोना। ये कहते हुए ज़ेब ने मरहा को फिर से गले लगा लिया। फिर वो दोनों नीचे आ गए थे। कुछ देर ही गुजरी थी कि ज़ेब का कज़न आ गया और वो उसके साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। ज़ेब को गए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। मैं रात को खाना खाकर अपने कमरे में आ गई थी। ईशा की नमाज पढ़कर फारग हुई तो कुरान पाक की तिलावत करने लगी और तिलावत करते हुए उसे हुबा की याद सताई तो उसने आंसू रवानी से बहने लगे। तभी उसकी नज़र सूरह यूसुफ के तर्जमे पर पड़ी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके वालिद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इजाज़त से इन्हें अपने साथ ले गए तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से झूठ बोला कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घुमाने ले जा रहे हैं, जबकि उनका इरादा हज़रत यूसुफ को कत्ल कर देने का था, क्योंकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ इस वजह से हसद करते थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे। और जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए तो उनमें से एक ने कहा कि उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कत्ल कर देते हैं, जबकि दूसरे भाई ने कहा कि नहीं, हम उसे किसी कुएं में फेंक देते हैं और उसकी कमीज पर किसी जानवर का खून लगाकर वालिद को दिखाकर उनसे कहेंगे कि उसे कोई भेड़िया खा गया। और आखिर ये ही फैसला किया गया कि इन्हें कुएं में फेंक दिया जाए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। लेकिन फिर अल्लाह ने इन्हें बादशाह बना दिया। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हुए मरा की आंखें भीगने लगी। या अल्लाह, जिस तरह से तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई तो मेरी बेटी की भी हिफाजत फरमाना। जिसे तेरे नबी मासूम थे, मेरी बेटी भी मासूम है, तो उसकी भी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, तो मेरे गुनाहों को ना देख, बेशक तेरी रहमत तो मेरे गुनाहों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ऐ मेरे मालिक, तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मुझ पर और मेरी बेटी, मेरे शोहर और मेरे तमाम रिश्तेदारों पर रहम फरमा। वो सजदे में जाकर दुआएं मांगते हुए ज़ारू की तार रो रही थी। जब दुआ मांगकर उठ तो बेड पर आकर लेट गई। तभी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आने लगी तो मरहा को सर्दी लगने लगी। फौरन उसे खिड़की बंद करने के लिए उठी। जब खिड़की के पास आई तो देखा हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। फिर से दिल में आशा की यादों ने सर उठाना शुरू कर दिया। आशा की याद में आंखें फिर से नम होने लगी। मैं आपको कैसे भूलूं आशा, आपको भूलने की कोशिश करती हूँ तो आप और ज्यादा याद आने लगते हो, और आप मेरी पहली चाहत हैं आशर। आपके बाद इस दिल में कभी कोई नहीं आ सका और ना ही कभी कोई आ सकेगा। ये कहते हुए मरहा ने खिड़की बंद की और जैसे ही पलटी तो सामने दीवार पर ज़ुहैब की तस्वीर देखकर गहरा सांस लेकर रह गई। फिर ज़ुहैब की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। ज़ुहैब, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपकी खातिर। मरहा ने अपना आप तो आपके नाम कर दिया, मगर मरहा का दिल कभी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इस दिल में आशिक रहते हैं और मरहा आशिक की जगह किसी और को नहीं दे सकती। जो मकाम आशिक का है वो कभी आपका नहीं हो सकता और सब पर मेरा कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि इस दिल ने सिर्फ और सिर्फ आशिक को चाहा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा ज़ुहैब, मरहा ने आपके साथ मुनाफिकत कर दी। वो दिल ही दिल में ज़ुहैब से मुखातब थी। फिर आंसू साफ करते हुए अपने बेड पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखें बंद की थी तो हुबा को मासूम सा चेहरा उसके सामने आ जाता और फिर से आंखें नम हो जाती। या अल्लाह, ये तूने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया। मुझसे औलाद लेनी ही थी तो दी ही क्यों थी। जाने वो किस हाल में होगी, किसके पास होगी। खदशात ने उसके दिल को आन घेरा हुआ था। वो उठकर बैठ गई। या अल्लाह, मेरी हुबा की हिफाजत करना। वो फिर से उठी, वजू किया और जाए नमाज पर बैठ गई। दुआएं मांगती रही और फिर नवाफल अदा किए और फिर इबादत करते करते जाने कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। फिर फजर की अजान होने लगी तो फिर फजर की नमाज पढ़कर कुछ देर के लिए लेट गई। जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। उसे होश तो तब आया जब खाला ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया। दरवाजे की आवाज पर वो हड़बड़ा कर उठी। दरवाजा खोला तो देखा खाला थी। क्या हुआ मरहा, 11 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो?
खाला ने मरहा के चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा। जी खाला, बस सारी रात नींद नहीं आई थी। फजर की नमाज के बाद सोई तो पता नहीं चला कि इतना वक्त कैसे गुजर गया। मरहा इतनी देर से उठने पर कुछ शर्मिंदा सी हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैंने नाश्ता बना लिया है, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। खाला मरहा से कहती हुई वापस चली गई। खाला, आज मैं खाना बनाऊंगी, मरहा ने नाश्ते के बाद बर्तन उठाते हुए कहा। अच्छा, जैसे तुम्हारी खुशी। खाला जानती थी कि जब वो फारिग होती है तो उसके जहन में उल्टी सीधी सोचें आती रहती हैं, तभी उसे खाना बनाने से मना नहीं किया। घर में अब दो ही लोग रह गए थे, इतना काम भी नहीं था। सुमरा अपना काम जल्दी निपटा कर खाला के साथ ही बैठ जाती। बाज़-औक़ात उन दोनों का वक्त ही नहीं गुजरता और बाज़-औक़ात वक्त का पता ही नहीं चलता था कि कैसे गुजर गया। ज़ेब, तुम फिर क्या सोचा? सवेरा की आंखों में शैतानियत झलक रही थी। किस बारे में? ज़ेब ने सवेरा को हैरानी से देखा। बरहा से कब बदला ले रहे हो अपनी बेइज्जती का? क्या तुम भूल गए हो कि किस तरह उसने तुम्हें इस आशय के लिए ठुकराया था? अम्मी और तुमने मरहा और खाला की कितनी मिन्नतें की थी, मगर इस मरहा ने हमें इस वक्त कुछ समझा ही नहीं, और तू और इस आशय की वजह से हमारा प्लाट बिक गया। इसकी वजह से हम यहाँ आ गए। ना वो बीमार होता और ना हम यहाँ आते, और ना इस वजह से हमारा घर बिक गया। एहतशाम को जेल होगी और हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब वक्त है कि तुम हमारा से अपनी बेइज्जती का बदला लो। तुमने कहा था ना कि तुम उसे इस लिए शादी कर रहे हो, अब तलाक देकर फारिग करो उसे। मैं तुम्हारी शादी अपनी दोस्त की बहन से करवा दूंगी। तुम इतने गए गुजरे थोड़ी हो ना कि तुम एक बेवा एक बेटी की माँ से शादी करते। बस जब हम पाकिस्तान जाएंगे तुम मरहा को धक्के देकर घर से निकाल देना। सवेरा गुस्से में पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही थी। सवेरा बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा दिल में मरहा के लिए बहुत गुस्सा था, और अगर मैं उससे शादी की थी तो तलाक देने के लिए नहीं की थी, बल्कि मैंने सोचा था कि उसे अपने साथ रखकर दुख दूंगा, उसे सजा दूंगा कि उसने मुझे क्यों ठुकराया था। मगर आप जानते हैं कि मैं ऐसा ही नहीं कर सका। मैंने जब ऐसा करना चाहा तो मुझे खुद तकलीफ होने लगी। पहले मुझे लगता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मगर उससे शादी के बाद मुझे लगने लगा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, और मैं चाहकर भी उससे तकलीफ नहीं दे सकता। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया, और सवेरा अपना मूसा लेकर रह गई कि उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। वो मरहा को अपने ही बुरे हालात का जिम्मेदार ठहराती थी। इसी वजह से वो चाहती थी कि वो मरहा को ऐसे सजा दे कि वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मगर सच कहते हैं कि इंसान सिर्फ तक तदबीर करता है, लेकिन तकदीर सिर्फ अल्लाह ही बनाता है, और बेशक वो हर चीज पर कादिर है। अब तो जुहेब को गए हुए पूरा एक महीना हो चुका था, और जब वो दोनों खाला बांझी बैठ कर बातें कर रही थी तो मरहा पानी पीने के लिए उठने लगी तो उसका सर चकरा गया और वो बेड पर गिर गई। अरे अरे, क्या हुआ? खाला ने मरहा पर पानी के छींटे डाले तो वो होश में आई। उसे अचानक से क्या हो गया? मरहा ने अपना ख्याल नहीं रखती ना, तुम सही तरह खाना भी नहीं खाया, तबीयत ठीक है ना अब? उन्होंने मरहा से पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। जी ठीक हूँ, मैं तुम्हें आज डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। खाला कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई कि जहेब भी यहाँ नहीं था और मरहा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मरहा को शाम में डॉक्टर के पास ले जाएंगी। ये कौन है आपकी? डॉक्टर ने मरहा का चेकअप करने के बाद मरहा से उसकी खाला के बारे में पूछा। ये मेरी खाला है और सास भी, मरहा ने डॉक्टर को बताने तो वो मुस्कुराने लगी। मुबारक हो, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद मरहा का मुंह खुले का खुला रह गया, और खाला डॉक्टर की बात सुनने के बाद बहुत खुशी से निहाल हो रही थी। डॉक्टर, कितना टाइम हो गया? खाला ने डॉक्टर से पूछा। 5 या 6 हफ्ते, डॉक्टर ने बताया तो खाला बहुत खुश हुई। वो दोनों जब घर आई तो खाला ने फोन करके जब जेब को बताया तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। खाला ने बात करके फोन मरहा को दे दिया तो ज़ेब बहुत खुशी से इज़हार किया। काश मैं वहाँ होता माही, मैं तुम्हारे पास होता तो कितना अच्छा होता ना। ज़ेब का बस नहीं चल रहा था कि अगर मरहा के उठकर मरहा के पास पहुंच जाता। मरहा खुश भी थी और उदास भी कि पहली बार उसे औलाद की खुशी रात से ही नहीं आई थी, और अब भी पता नहीं क्या हो जाएगा, कि उसने हमेशा खुशियों से पहले ही गम देख लिए होते थे। ज़ेब ने कंपनी के ऑनर से मिलकर बात की थी। उन्होंने ज़ेब को यकीन दिलाया कि हम दोबारा से करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और अगर एहतशाम बेगुनाह हुआ तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी के मैनेजर ने एहतशाम पर इल्जाम लगाया था और एहतशाम मुसलसल जुर्म को कबूल करने से इनकार कर दिया था। एहतशाम का कहना था कि बेशक ये लोग मुझे मार दें, लेकिन मैं जुर्म कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कसूरवार नहीं हूँ
اور احتشام کی مسلسل انکار کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ سے تحقیقات شروع کر دی تھی۔ کمپنی کے اونر کا بیٹا بہت زیادہ چلاک تھا، مگر وہ تو اس کمپنی کو دیکھتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا، اس لیے یہ لنڈرز ہوئے۔ مگر جب اس نے ان سب معاملات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے طور پر خود اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس نے کچھ لوگ فراز کے پیچھے بھی لگا دیے تھے اور اس کی لوکیشن ٹریس کی جا رہی تھی، کیونکہ جب تک فراز کو نہیں پکڑ لیتے وہ کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ مگر کمپنی کے اونر کے بیٹے نے زیب سے بات کرتے ہوئے کوئی نرمی نہیں دکھائی تھی، اور زیب کے مطابق وہ انتہائی بدتمیز بدلحاظ قسم کا انسان تھا جس میں ذرا برابر بھی انسانیت نہیں تھی۔ لیکن معاملے کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی، جب تک حقیقت کا ادراک نہیں ہو جاتا وہ کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے زہیب کو بھی تقریباً مایوس ہی کیا تھا، مگر وہ خود جب ذاتی طور پر احتشام سے ملا تو اسے لگا کہ یہ بہت شریف انسان ہے، مگر پھر بھی جب تک حقیقت سامنے نہیں آ جاتی تھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا فی الحال اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ رسپانس اچھا ہونا چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اگلی قسط پر پھر دیر سے آئے گی۔